النفس إن لم تظفري لا تجزعي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ریوائیور آف سنہ کی اسلامی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں آپ کا میزبان ابراہیم بیگ. سب سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ رہے گی کہ نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کر کے ہماری چینل کو لائک کریں، کیونکہ اگر آپ اس چینل کو لائک کریں گے تو آپ اس کیٹیگری میں شامل ہو رہے ہیں جو علم سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں دوسروں کو. کیونکہ آپ کے ذریعے اگر آپ کوئی چیز سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، آپ کا صدقہ جاریہ کا جو میٹر ہے وہ آپ کے انتقال کرنے کے بعد بھی جاری رہے گا، اور وہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دنیا تو فنا ہونے والی ہے، کچھ چند روزہ زندگی ہے، آج ہے کل نہیں ہوں گے، لیکن آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے. چلیے اس آخرت کے لیے کچھ ذخیرہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. میرے دوستوں، آج کا موضوع جو رہنے والا ہے وہ ہے خشوع خضوع، نماز میں خشوع خضوع. کیونکہ نماز جو ہے وہ ایک مسلمان کی بنیادی احکام ہے جس سے اس کی فرق ہوتی ہے کافر سے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز وہ چیز ہے جو ایک کافر کو اور ایک مسلمان کو آپس میں فرق کر کے دیتی ہے. آپ شہادت دیں گے، بے شک آپ مسلمان بن گئے، لیکن جب آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ایمان ادھورا ہے، بلکہ ایک رائے کے دانے کے برابر ہے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، بالکل نماز نہیں پڑھتا، اور وہ اسی حالت میں اگر اس دنیا سے نکل جائے تو وہ ایسے مرے گا جیسا کہ وہ کافر مرا. تو میرے دوستو، اس نماز کی کچھ شرائط ہے، اس نماز کو صحیح ہونے کی کچھ شرائط ہے، اور سب سے بڑی شرط جو ہے وہ ہے خشوع خضوع. خشوع کا مطلب ہے خشیت، یا اللہ رب العزت کا خوف رہنا، اللہ رب العزت کی پریزنس کا خیال رہنا، اللہ رب العزت کی عظمت کا خیال رہنا. یہ اس چیز کا اندازہ ہونا کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اس بڑی می کا اندازہ ہونا. اور خضوع کا مطلب ہے اپنی جو مومنٹس ہیں نماز میں اس میں اطمینان رہنا، ہر کوئی مومنٹ برابر کرنا، جب تک آپ کی باڈی کا ہر کوئی جوائنٹ اپنی جگہ پہ برابر گرے، اپنی جگہ پہ برابر جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ لے لے. جیسے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو رکوع مکمل ہو، جلدی جلدی ایک مرغے کی طرح نماز نہ پڑھے، جیسے کہ ایک مرغا دانوں کو اٹھاتے رہتا ہے اپنی تونت سے، ویسے نماز نہ پڑھے، بلکہ ایک اطمینان اور مطمئن طریقے سے رکوع میں چلے جائیں اور سجدوں میں چلے جائیں. ہر کسی نماز کی مومنٹ کو اچھا خاصا ٹائم دے اور بالکل ادب سے اس نماز کو پڑھے. قرآن حکیم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً فلاح پا گئے یا سکسیسفل ہو گئے ایمان والے. اور ایمان والوں کی سب سے پہلی جو صفت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ ایمان والے جو کہ اپنی نمازوں میں خشیت اختیار کرتے ہیں. یعنی کہ نمازوں کا حکم جہاں قرآن حکیم میں آیا وہیں پہ امیجیٹلی خشیت کا حکم بھی آیا، یعنی کہ خشوع کا. اور خشوع جو ہے اسی سے آپ کی نماز جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اگر آپ ایسے ہی نماز پڑھیں بلا فوکس کے، بنا کنسنٹریشن کے، تو وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی بلکہ ریجیکٹ ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ قرآن حکیم میں فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. تو خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، مصیبت ہے ایسی نمازیوں کے لیے، افسوس ہے ایسے نمازیوں پہ. ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ پراپر ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. جو نماز کا ٹائم وقت ہوتا ہے میقات کے حساب سے، اس وقت پہ نہیں پڑھتے بلکہ اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں، بولتے ہیں چلو بعد میں پڑھیں گے، قضا کر کے پڑھیں گے. ایسے نمازیوں کے لیے. یا جو نماز میں اچھے طریقے سے کھڑے نہیں رہتے، مطلب غفلت سے کھڑے رہتے ہیں، کہالت سے کھڑے رہتے ہیں، لیزینس سے کھڑے رہتے ہیں، دل سے ان کی چاہت نہیں ہوتی ہے مسجد میں کھڑے رہنے کی، لیکن اسی لیے رہتے ہیں الذین ہم یراؤن، تاکہ لوگ انہیں دیکھ پائیں اور انہیں منافقوں میں شمار نہ کرے، انہیں
मुसलमानों में ही शुमार करे। उनका मकसद, उनकी नीयत ही ये होती है कि दूसरे लोग हमें देख के वाह वाह करें और हमारी तारीफें करें और ये कहे कि भाई चलो ये हमारे साथ नमाज पढ़ रहा है तो ये शायद कामिल ईमान वाला होगा, लेकिन दिल में उनके ईमान होता नहीं है। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार एक सहाबी को नमाज पढ़ते हुए देखा। वो जल्दी जल्दी आया, उसने वजू किया जल्दबाजी में, फिर उसने नमाज बिल्कुल जल्दी में पढ़ी, बिल्कुल वैसी ही उसी कैफियत से पढ़ी जैसे कि मैंने अभी आपको मिसाल दी कि जब एक मुर्गा चुन चुन के दाने उठाता है अपनी तोंद से और फिर उठाते हुए वापस छोड़ता है, ऐसे मतलब जैसे वो पैक करते रहता है, वैसे उसने जल्दबाजी में नमाज पढ़ी, यानी कि ना खुशू था उसमें ना खुजू था। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया कि ऐ सहाबी फिर से नमाज पढ़ो क्योंकि ये तुमने नमाज पढ़ी ही नहीं। तो उस सहाबी ने फिर से नमाज पढ़ी। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेटिस्फाई हुए और बोला हाँ अब तुम्हारी नमाज मुकम्मल हुई क्योंकि तुमने अब अदब व एहतराम से और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जिन अलग अमालों से और अफ़आलों से हमारी नमाज की खशियत खत्म होती है और हमारी नमाज में खुजू खुशू नहीं रहता, वो कुछ इस तरीके से है। अफ़आल नंबर 1, नमाज में कहालत से और लेजीनेस से खड़े रहना, पूरे एक्टिवली नमाज में खड़े ना रहना और फोकस से, कंसंट्रेशन से खड़ा ना रहना, बल्कि नमाज में इस हालत में खड़े रहना कि आप सुस्ती का इजहार करें और जल्दबाजी हो आपको मस्जिद से वापस निकलने की। अफ़आल नंबर 2, नमाज पढ़ते वक्त यहां वहां के ख्यालातों में मंडराना, बल्कि नमाज के वक्त ही ऐसी चीजें याद पढ़ना जो कि आप अपने दुकान में, अपने दफ्तर में, अपने ऑफिस में बैठ के भी आपको याद ना पड़ती हो, अजीब अजीब से ख्यालात आना। मेरे दोस्तों, ये जो मुजाहिरा यहाँ पे होता है, ये जो इर्तिकाब होता है, ये एक शैतान के जरिए होता है जिसका नाम है खिंजब। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये खिंजब जो है, जब एक मुअज्जिन अजान देता है तो ये अपनी पीठ फेर के भाग जाता है और जब नमाज कायम होने वाली होती है तो फिर से मस्जिद में दाखिल हो जाता है और फिर जहां जहां सफों में गैप्स होती है उन गैप्स में जाके, खासकर जो प्रॉपरली सफ बांधते नहीं है, यानी कि शानों से शाने और टखनों से टखने नहीं रखते साथ, उनके सफों में बीच में घुस के ये खंजब उनको वसवसे डालते रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देख सकता हूं कि खंजब कैसे तुम्हारे सफों के बीच में जाता है और तुम्हें वसवसे डालता है, और फिर एक इंसान को इधर उधर के ख्यालात आते रहते हैं नमाज में, जिससे उसकी नमाज की खशियत, उसका फोकस और उसकी कंसंट्रेशन पूरी खत्म हो जाती है। इसके बारे में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रेमेडी भी दी है, एक इलाज भी दिया है कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि नमाज में तुम्हें वो शैतान वसवसा डाल रहा है तो अपने बाएं और 3 बार स्पिट करो, थूको, लेकिन वो थूक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जिससे लाभ निकले, बल्कि मैं आपको दिखाता हूं इस चीज को करके कैसे होनी चाहिए वो। पहले आपको आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है नमाज में ही, और फिर अपने बाएं और 3 बार इस तरीके से थूकना है। उससे जो वो खंजब है वो आपके, जब तक आपकी नमाज मुकम्मल ना हो तब तक वो आपके सामने भटकेगा नहीं। और सबसे अहम चीज ये है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर, यानी कि परहेज इलाज से बेहतर है। अगर आप पहले अपने सफ अच्छे तरीके से बांधे, सुन्नह तरीके से, अक्सर देखा जाता है कि लोग टखनों से टखने साथ जोड़ के नहीं रखते नमाज में, पैरों से पैर जोड़ते नहीं है और शानों से शाने भी जोड़ते नहीं है, बल्कि दूर दूर खड़े होते हैं। ये एक शैतानी काम है, इससे परहेज करें। अफ़आल नंबर 3, नमाज पढ़ते वक्त इधर उधर देखना। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये कैसे होता है। नमाज पढ़ रहे हैं, एक बंदा यहाँ देखता है, एक बंदा टाइम पे देखता है, टाइम की उस वक्त क्या टाइम आ रहा है, एक बंदा यहाँ साइड से देखते रहता है। तो ऐसे जो है आपकी नमाज खराब होती है, आपकी खशियत खराब होगी, ऐसे आपका खुशू खुजू खत्म होगा नमाज का। नमाज पढ़ते वक्त प्रॉपरली आपकी, जब आप क़याम में हो तो आपकी नज़र जो है वो सजदे की जगह पे होनी चाहिए, और जब आप रुकू में जाएं तो आपकी नज़र अपने पाँव पे, अपने टोज पे होनी चाहिए, पाँव की उंगलियों पे होनी चाहिए, और जब आप सजदे में जाए तो आपकी नज़र बिल्कुल अपने नीचे होनी चाहिए। तो उससे आपकी जो खशियत है और आपका जो खुजू है नमाज का वो बरकरार रहेगा। अफ़आल नंबर 4, नमाज में चोरी करना। अब मेरे दोस्तों, आप ये सोचें कि नमाज में कोई चोरी कैसे कर सकता है, उस वक्त तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने खड़ा होता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। एक बंदा जब रुकू और सजदा प्रॉपरली ना करे और बिल्कुल जल्दबाजी में करे, बिल्कुल उस कैफियत में जो मिसाल मैंने आपको अभी दी, जैसे एक मुर्गा चुन चुन के अपने दाने को उठा के बार बार उसको जो है वो तोंद से उठाते रहता है, वैसे ही जल्दबाजी में ऐसे
जल्द बाजी में रुकू और सजदे करना, ये नमाज से चोरी करना हो। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो नमाज से चोरी करे और जल्दी जल्दी नमाज पढ़े उसकी नमाज कबूल नहीं होती। खासकर रुकू और सजदे ये इत्मीनान से देने हैं, ये आराम से देने हैं, इनमें काफी अच्छा खासा टाइम देना है, तब जाके आपकी नमाज कबूल होगी। अफ़आल नंबर 5, नमाज में जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है इमाम के जरिए, या जब आप नवाफिल नमाज पढ़ रहे हो, सुन्नतुल मुअक्कदा पढ़ रहे हो, आप खुद से पढ़ रहे हो, तो जो भी आप पढ़ रहे हो उस पे तदब्बुर न करना कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। बस ऐसे ही जो सूरे आपने याद किए हैं रट्टा उनको पढ़ते ही जाना, कभी उसके मतलब पे तदब्बुर न करना और उसको समझने की कोशिश न करना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान हकीम में फरमाते हैं अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग मेरे कुरान पे, मेरे कलाम पे तदब्बुर क्यों नहीं करते, समझ के क्यों नहीं पढ़ते, क्या इनके दिलों पे ताले लगाए गए हैं। यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तशबीह की, सिमिलैरिटी बयान की एक ऐसे बंदे की जो सिर्फ कुरान पढ़ता है लेकिन समझता नहीं है उसको, ऐसे इंसान से जिसके दिलों पे लॉक लगाया गया हो, जिसका दिल पूरी तरीके से बंद हो चुका हो, गिरफ्तार हो चुका हो। तो मेरे दोस्तों, नमाज में पढ़ के समझ के पढ़ना, तदब्बुर करके, गौर फिक्र करके, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तब जाके आपकी नमाज इफेक्टिव होगी। और ये खुशू का एक पार्ट है। खुशू खुजू को तोड़ने वाला अफ़आल नंबर 6, अपने अवराह को अनकवर या एक्सपोज करना या बेनिकाब करना। एक मर्द का अवराह उसके नाफ से लेकर उसके घुटनों तक है, और अगर आप ऐसा कोई लिबास पहनते हैं, ऐसी कोई छोटी सी या शॉर्ट शर्ट पहनते हैं जो पीछे से आपको सजदा करते वक्त ऊपर चढ़ती हो और आपका पीछे से अवरा नजर आता हो, तो आपकी नमाज जो है वो नाकिस हो जाती है मेरे दोस्तों। इसीलिए नमाज में हमेशा ऐसा लिबास पहना करे जो आपको पीछे से सतर को एक्सपोज होने ना दे, और आपका जो सतर है वो हमेशा निकाब में रहे, ढका रहे नमाज में, वरना आपकी खुशू खुजू जो है वो खराब हो जाएगी। अफ़आल नंबर 7, अदब व एहतराम से खड़े न रहना, बल्कि नमाज में ऐसी मूवमेंट्स करना जो कि बिल्कुल नमाज के एहतराम के खिलाफ है, नमाज के तकद्दुस के खिलाफ है। मेरे दोस्तों, अगर हम दुनिया के किसी ऑफिसर के सामने खड़े रहें, जिसके पास हमें कोई हाजात हो, जिसके पास हमें कोई काम, कोई मतलब निकालना हो, तो हम बिल्कुल अदब व एहतराम से हाथ पीछे रख के, सर नीचे रख के खड़ा रहते हैं। उसकी अजमत हमारे दिल में है क्योंकि वो फिजिकली हमारे सामने है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने इतनी बड़ी वसी कायनात बनाई, जब उसके सामने हम खड़े रहते तो हम अदब व एहतराम से खड़े नहीं रहते, बल्कि हमें इस चीज का एहसास भी नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें देख रहा है। तो उस एहसास को रखने की तो दूर की बात, हम ये भी नहीं समझ पाते कि हम अल्लाह के घर में खड़े हैं, मस्जिद में खड़े हैं। हम अपनी आवाजों को ऊंचा करते हैं, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करते हैं। ये सारी हरकतें खुशू खुजू के मायार के खिलाफ है, स्टैंडर्ड के खिलाफ है। अगर हमें अपनी नमाजों को कबूल कराना है तो सिर्फ मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि पूरे अदब व एहतराम से खुशू खुजू के साथ हमारी नमाज पढ़ी जानी चाहिए। खुशू का खुलासा तो मैंने आपको बता दिया, खुजू का खुलासा बताते हुए मैं आपको मुख्तसरन ये कहूंगा कि खुजू का मतलब है कि आपकी जो नमाज में अलग अलग मुख्तलिफ मूवमेंट्स है, जैसे कयाम हो, खड़े रहना, या रुकू हो, झुकना, या सजदा हो, ये पूरे अपने एक जो मूवमेंट है उसके हिसाब से होनी चाहिए। इसकी जो प्रॉपर मूवमेंट है, यानी कि आपके जितने भी बॉडी के जॉइंट्स है, आपका एल्बो जॉइंट, आपके हाथ, ये बराबर अपनी पोजीशन पे जाने चाहिए और उसी पोजीशन पे कुछ देर रहने चाहिए। इत्मीनान होना चाहिए, कंपोजर होना चाहिए, कामनेस होनी चाहिए नमाज में। अगर आप जल्दबाजी में नमाज पढ़ रहे हैं और रुकू प्रॉपर मूवमेंट में नहीं कर रहे, सजदा प्रॉपर मूवमेंट में नहीं कर रहे, तो आप अपने खुजू को खराब कर रहे हैं। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, नमाज कोई मजाक नहीं, बल्कि ये एक कम्युनिकेशन है, ये एक इंटरेक्शन है आपके और आपके क्रिएटर के बीच में। और ये जो वक्त आप नमाज पे देंगे, इसमें आप पूरी फोकस, पूरी कंसंट्रेशन और पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, हम्बलनेस के साथ अपने क्रिएटर के साथ इंटरेक्ट करें। अपना जो पर्सनल टाइम है, प्राइवेट टाइम है आपके और आपके क्रिएटर के खालिक के बीच में, वो खुशू खुजू के पामाल करने की वजह से जाया ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ने का तो ये मामला हुआ करता था कि उनके पाए मुबारक सूज जाते थे, स्वेल हो जाते थे नमाज में खड़े रह रह के। और जब वो किरात करते थे, नमाज पढ़ते थे, तिलावत करते थे,
تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ پتیلے میں پانی ابل رہا ہو. ایسے وہ رو رو کے خشیت سے نماز پڑھا کرتے تھے. کہاں ان کی نماز اور کہاں ہماری نماز میرے دوستوں. آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ابراہیم بیگ، ریوائور آف سنہ کی اسلامک چینل سے خوش رہیں، آباد رہیں، نماز میں خشوع خضوع کرنے والے رہیں اور سنہ کو ریوائیو کرنے والا رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.